بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ششم کے مصباح القرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 191 سے 193 تک کا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ بک میں آپ دیکھیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار کو جو آپ سے زیادتی کرتے ہیں، آپ سے عہد توڑتے ہیں، ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ان کی رعایت کر دو، بلکہ نہیں، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اس آیت میں اس جگہ پر اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو کفار نے مکہ سے نکال دیا تھا اور نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کفار کی اذیتوں سے تنگ آ کر، کفار کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ اب اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، فتوحات ہی فتوحات عطا فرمائی، مسلمان اب ماشاءاللہ مضبوط ہو گئے۔ تو اب اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا تھا، یعنی مکہ مکرمہ پر آپ جا کے ان سے قتال کریں اور انہیں مکہ سے نکالیں۔ مکہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر یہ مشرک اور کافر ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں وہاں سے نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو کافر لوگ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آتے ہیں، دین سے ان کو بہکاتے ہیں، دین کے مخالف بناتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ جب بھی یہ فتنہ پھیلائیں تو آپ نے انہیں معاف نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ مسجد حرام جو ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر اس علاقے میں اللہ نے قتال کو جائز قرار نہیں دیا، لیکن اگر کفار ابتدا کرتے ہیں، کفار لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو پھر مسلمان خاموش رہ جائیں اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے قتال جائز نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ابتدا کرتے ہیں، وہ آپ سے جنگ کرتے ہیں، وہ آپ سے قتال کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ قتال کرو، آپ بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے مت لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود اس میں تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو، ان کی رعایت نہیں کرنی، انہیں معاف نہیں کرنا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو سزا اسی طرح قتل کی صورت میں یا پھر نکال کر، اس ملک سے نکال کر، اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم کفار کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دین حق کے اور رسول اور صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے جو ہے مخالف ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اللہ ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ لڑائی سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم بھی انہیں چھوڑ دو، تم بھی قتال روک دو، تم بھی لڑائی روک دو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں
کہ آپ ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ جو وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، جو وہ لوگوں کو کافر ہونے کی طرف بلاتے ہیں، جو وہ لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تک اس فتنے کو ختم نہ کر دو اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ، یعنی شرک و ظلم کا فتنہ بھی ہے اور گمراہی کا فتنہ بھی ہے، وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، پوری روئے زمین پر اللہ کا دین پھیلا دو. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ کافر باز آ جاتے ہیں لڑائی کرنے سے، ظلم و زیادتی کرنے سے، فَلَا عُدْوَانَ، تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر. وہ ظالم جو کفر سے باز نہیں آتے، گمراہی پھیلانے سے باز نہیں آتے، کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، ان کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں کوئی رعایت نہیں ہے. تو بچوں یہ آج کی 3 آیتیں ہم نے اس سبق میں پڑھی ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. اس کے بعد ہے رموز اوقاف. رموز اوقاف میں 2 چیزیں آج ہم پڑھیں گے. یہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں یہ سواد لام یہ نشانی آتی ہے اور یہ قافہ، یہ 2 چیزیں جب آتی ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ رموز اوقاف آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، آپ ان سے دیکھیں. یہ سواد لام جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. سواد لام جہاں پر قرآن مجید میں لکھا آپ کو نظر آتا ہے، یہ نشانی نظر آتی ہے، تو وہاں پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ ٹھہریں اپنی آواز کو آگے ساتھ ملا کر اگلی آیت کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں اگر آپ رک جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ کاف اور فا، یہ جو اس کو کیف کہا جاتا ہے، کیف، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. جہاں پر یہ علامت اور یہ نشانی آتی ہے وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، اپنا سانس توڑ دینا چاہیے. تو یہ آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope so you will be fine at home. As you know, in our previous lecture we have completed our 4 paras. Today turn of 5th paras for unit 11. First of all, I have a look diary. Unit 11, para 5, reading plus translation plus reading question plus story. Open the book page 117 of unit 11, para number 5. Your work is, first of all, you will be learn word meaning. After then, we start translate into Urdu. Word meanings: picked up, उठाया, powder, सकूफ, fog, आहिस्ता आहिस्ता, हरित, जल्दी से, trick, हरका या तरीका. Now let's move for translation. Para number 5, having eaten, कुछ खाकर, a few sounds potato, कुछ सही आलू, the sickly animal, बीमार जानवर ने, at last, आखिरकार, picked up, उठा लिया, the one egg, which had the powder, जिसमें powder या सकूफ भरा हुआ था. Again, having eaten a few sound potatoes, the sick animal at last picked up the one which had the powder. बीमार जानवर ने कुछ सही आलू खाकर उसमें से जिसमें पाउडर भरा हुआ था, आखिरकार वो आलू भी उठा लिया. He popped it into his mouth, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह में डाला, and with a few hurried crunches, और जल्दी से चिपा लिया, he swallowed it, उसने निगल लिया. Again, he popped it into his mouth, and with a few hurried crunches, he swallowed it. उसने अपने मुंह में आहिस्ता आहिस्ता डाला और जल्दी से चबाकर उसको निगल लिया. The डॉक्टर की लिटिल ट्रिक, छोटी सी तरकीब, हेड वर्क, काम कर चुकी थी. डॉक्टर की छोटी सी तरकीब काम कर चुकी थी. Once again, having eaten a few sound potatoes, the sick animal at last picked up the one which had the powder. कुछ सही आलू खाकर बीमार जानवर ने आखिरकार वो वाला आलू उठा
for pop, pop کے لیے. Pop کا meaning آہستہ آہستہ یعنی کہ ہم نے اس پیرا میں یوز کیا. اسی پیرا سے ریلیٹڈ کیونکہ ہمارے پاس یہ کوشچن ہوتا ہے, انہوں نے کہا pop کے لحاظ سے ایک اور ورڈ ہمیں بتائیں جو یوز کیا جاتا ہے. The other word, same answer from the question. The other word which can be used for popped is thrusted. Thrusted کا word ہم popped کی جگہ پہ use easily کر سکتے ہیں. Now move for our next topic, story on strange hen, ایک عجیب مرغی. یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس چند ان کے ورڈ میننگ ہیں جو آپ لرن کر لو تو آپ لوگوں کو اسٹوری کی لرننگ کرتے وقت آسانی رہے گی. فرسٹ آف آل لک ورڈ میننگ, اسٹرینج عجیب, لیب دیتی تھی, گولڈن سنہری, سولڈ بیچے, فار سو لانگ لمبے عرصے کے لیے, ڈائٹ خوراک. ناؤ موو فار ریڈنگ آف اسٹرینج ہین اسٹوری. ونس اے مین, ایک دفعہ کا ذکر ہے. جب بھی اسٹوری ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ونس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے اور اسٹوری ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہے. ونس اے مین ہیڈ اے اسٹرینج ہین, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک عجیب مرغی تھی. اٹ لیڈ گولڈن ایگز, وہ دیتی تھی سنہری انڈے. The man was very happy, آدمی بہت خوش تھا. He sold, اس نے بیچے. It انہیں and became a rich man, اور امیر آدمی بن گیا. But he was very greedy, لیکن وہ بہت لالچی تھا. He wanted, وہ چاہتا تھا to become rich at once, وہ ایک ہی دفعہ میں امیر ہو جائے. The hen, مرغی laid only one golden egg, ایک ہی انڈا سنہری دیتی تھی in a day, ایک دن میں. He could not wait for so long, وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا تھا. He gave the hen some special diet, اس نے خاص کر دی بہت سی اچھی خوراک hen so that the hen could lay more eggs daily, کہ مرغی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ انڈے دے. Now our lecture is completed. Okay, till then we aman Allah. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, کلاس 6 سبجیکٹ میتھ, اور آپ کی ڈائری ہے ایکسرسائز 8.4 کوشچن نمبر 5 پارٹ 7 to 10 پلس کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 5 پریویس لیکچر جیسے ہم نے پڑھا تھا a plus b minus c, یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے a plus b minus c. جب کہ n کی ویلیوز گیون ہے تو n کی جگہ پہ ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں. a کی ویلیو ہے a plus b plus c, آگے پلس کا سائن ہے تو ہم b پلس کا سائن لگائیں گے. پھر b کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس a minus b plus c, اسی طرح آگے مائنس کا سائن ہے تو ہم بھی یہاں پہ مائنس کا سائن لگائیں گے. اس کے بعد c کی ویلیو ہمارے پاس a plus b minus c. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا, اس کی a b اور c کی جگہ میں ہم نے ویلیوز ریپلیس کیے. اب بریکٹ آف کرتے ہیں, یہ دیکھیں اس کے بعد کوئی سائن نہیں ہے, یہ والی ویلیوز ویسے آ جائے گی. یہاں پہ پلس کا سائن ہے, یہاں پہ بھی ہم کوئی چینج نہیں کریں گے, لیکن یہاں پہ کیونکہ نیگیٹو سائن موجود ہے تو اس نیگیٹو سائن کی وجہ سے اس کے اندر کے سائن جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے. سب کے سائن چینج ہو جائیں گے, یہ پلس ہے مائنس ہو جائے گا, یہ بھی پلس ہے مائنس ہو جائے گا, اور یہ مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا. اس کے اندر اس سٹیپ پہ ہم نے کیا کیا, بریکٹ ان کی ختم کی ہے. اب نیکسٹ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ویلیوز کو ری ارینج کیا ہے. کیسے, یہاں پہ دیکھیں a اور a, یہاں پہ تین جگہ پہ a موجود تھا تو ہم نے ایک ساتھ رائٹ کر دیا. مطلب جتنی بھی a کی ویلیوز ہیں ان کو ہم نے ایک ساتھ لکھنا ہے. a کے بعد b کی ویلیوز ہیں ان کو رائٹ کرنا ہے, اس کے بعد c کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہم نے رائٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں a پلس a مائنس a, تو یہاں پہ دیکھیں یہ پلس کا a اور یہ مائنس کا a, تو پلس کا a اور مائنس کا a ایک دوسرے سے کٹ ہو جائیں گے کیونکہ سیم ویلیوز اور اپوزٹ سائن ہو تو وہ ویلیوز ایک دوسرے سے کینسل ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ہمارے پاس پلس کا بھی اور یہ ہمارے پاس ہے مائنس کا بھی, یہ بھی ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے, سیم ویلیوز ہیں, سائن اپوزٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ دیکھیں c + c, ان تینوں ویلیوز میں ان کے سائن سیم ہے تو یہ کینسل نہیں ہوگا. اب دیکھیں باقی ہمارے پاس آنسر جو اس کا آ رہا ہے وہ کیسے ہم نے رائٹ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں کیا بچ رہا ہے a, تو ہم a کو رائٹ کریں گے. اس کے بعد مائنس کا b,
माइनस कर भी राइट किया। यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट 1 + 1 2 and 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3c है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है a - b + 3c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। यही काम है कि आपने उनकी जगह पे वैल्यूज रिप्लेस करनी है, a b c d जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट है कि इसकी अगर आप स्टेटमेंट समझ ली तो आपको क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन की भी नहीं समझ आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, कि क्या चीज ऐड की जाए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू x² + xy + y² + 1 टू गेट x³ + 3। तो उसने कहा है कि इस चीज के अंदर क्या चीज ऐड की जाए कि हम ये वाली वैल्यू जो है वो हासिल कर सके। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने वैल्यू जो है हमें चाहिए 5 चाहिए, क्या चाहिए 5 चाहिए, और वैल्यू हमारे पास क्या हो 3, तो क्या चीज उसमें ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 5 आ जाए, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आएगा 2, कि 2 जो है वो 3 में ऐड करें तो आपके पास 5 बन जाएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड, कि हम क्या चीज ऐड करें किसके अंदर x² + xy + y² + 1 टू गेट, क्या चीज हमने हासिल करनी है x³ + 3। इस वैल्यूज को हासिल करने के लिए हम इसके अंदर क्या चीज ऐड करें। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आते, जो चीज हमने हासिल करनी है इसको फर्स्ट पे राइट करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद हमने ये वाली वैल्यूज राइट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज वैसे से राइट करनी है क्योंकि इसके बाद ना तो माइनस का साइन है और ना कोई वैल्यूज है, तो x³ + 3 वैसे आ गया। अब ये हमारे पास नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन किसी भी ब्रैकेट के बाहर मौजूद होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। जब मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे साइन चेंज कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये प्लस का x है, प्लस का xy + y² और +1, ये सारी वैल्यूज के प्लस की है। तो इस माइनस ने इस नेगेटिव के साइन में क्या करना है, सब के साइन को चेंज कर देना है। तो देखिए ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -x² -xy -y² एंड -1। अब हमारे पास जो साइन का मल्टीप्लिकेशन का काम था, क्योंकि साइन को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको अकॉर्डिंग टू देयर साइन अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है साइन को देखते हुए। ये देखिए हमारे पास क्या है x³। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए x³ कहीं पर है नहीं है, तो इसको सेम एज इट राइट कर दें। इसी तरह q के बाद कौन सी वैल्यू आती है स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे देखिए x² वाली वैल्यूज कौन सी है ये, तो इसलिए हमने लिख दिया -x², क्योंकि एक ही वैल्यूज थी इसलिए हम वैसे राइट करेंगे। उसके बाद -xy राइट किया और उसके बाद -y² एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचा है -1। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यूज हो तो उनको हमने पहले लिखना होता है, और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसको हमने एंड पे लिखना होता है। तो ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, तो इसके अंदर क्या चीज ऐड करें कि आपके पास ये वाली वैल्यूज हासिल हो जाए। तो वो जो आपने ऐड करनी, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 के अंदर क्या चीज ऐड करें कि आपका आंसर 5 है, तो 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का भी यही मतलब है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, कि हम क्या चीज ऐड करें किसके अंदर, इस वैल्यूज के अंदर, ताकि हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए। तो इसके अंदर अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो वो ये वाली वैल्यूज है, इस वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अगर आपने इसको चेक करना है तो आप इसके अंदर ऐड करके ये वाली वैल्यूज चेक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हमारे पास x³ और भी ऐसी वैल्यूज है नहीं है, तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे। उसके बाद माइनस का x², इसके साथ की भी कोई वैल्यूज नहीं है तो इसको हम भी वैसे लिखेंगे। उसके बाद -xy -y², उसके बाद हमारे पास ये था प्लस का 3 और ये क्या था माइनस का 1, तो प्लस का 3 माइनस का 1, 3 में से -1 अगर निकाल दें तो बाकी कितना बनेगा प्लस का 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसका मतलब ये है कि अगर इस वैल्यूज के अंदर इस को हम ऐड कर दें तो फिर जाके हमारे पास हासिल होगा x³ + 3। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3 के अंदर कोई चीज ऐड करें कि वो 5 बन जाए तो वो कौन सा नंबर है, वो है 2।
3 को 2 के अंदर ऐड करने से 5 बनता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का मतलब ये है व्हाट मस्ट बी एडेड, कि क्या चीज ऐड करें इस वाली वैल्यूज के अंदर, क्या चीज ऐड करें कि ये हमारे पास आंसर है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये है, इसको ऐड करने से ये आंसर आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. Today we are discussing science of 6th class. Previously आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ रीडिंग के बारे में बात की थी, साउंड की ट्रैवलिंग के बारे में बात की थी। आज जो है हम मजीद आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास इंसानी कान के बारे में डिस्कस किया गया है और इसके बाद हम जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेज है 117 एंड 118। 117 के ऊपर आपकी जो है वो एक्टिविटीज है, बुक ओपन करें जरा तो आपको वहां पे एक्टिविटीज नजर आएंगी, आपने उसको रीड आउट कर लेना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज को ओपन करें 118 ओपन करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? इंसानी कान। जी, इंसानी कान का बैरूनी और अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद हम वो रीड आउट करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सामने आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम जो है 5 और 7 के बारे में पढ़ना है, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। How does human ear receive sound? इंसानी कान किस तरह साउंड को रिसीव करता है? ये स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि किस तरह इंसानी कान जो है साउंड को रिसीव करता है। तो आप जानते हैं प्रीवियसली बहुत सारी चीजें को बताया था कि साउंड जो है वो वेव्स की शक्ल में किसी मीडियम के अंदर से गुजर के कहाँ जाती हैं, ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो जो वेव्स हैं वो हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती हैं, हवा के जरिए वो कानों तक जो पहुंचती हैं तो उस वक्त उसके बाद कौन सी चीज है, जाहिर बात है हवा तो हमारे दिमाग तक तो नहीं पहुंचती, वो हवा की वेव्स जो है वो हमारे माइंड के अंदर तो नहीं पहुंचती। तो कौन सी चीज है जो उस आवाज को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है? तो इसके लिए मुकम्मल एक प्रोसेस है, उसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है, जिस तरह एक माइक होता है, यहाँ माइक लगाया जाता है, माइक के ऊपर पर्दा लगा होता है जो क्या करता है, हमारी आवाज को की वजह से वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के बाद वो माइक उस वाइब्रेशन को, वो जो मोशन होती है वाइब्रेशन वाली, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स में। जब वो इलेक्ट्रॉन सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो फिर वो आगे मजीद उसको उसी हिसाब से रीड आउट करता है, उसको स्टोर की जाती है आवाज। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है इसी तरह का कि जैसे ही हम कोई आवाज की वेव्स यहाँ पहुंचती हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटर लेयर है एयर की, उसे पिना कहते हैं। उसमें हमारे पास एक जो नाली है जिसके अंदर से हवा आवाज गुजरती है, उसे एयर कैनाल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, आपने सुना होगा कान का पर्दा। तो ये कान का जो पर्दा है इसे हम क्या कहते हैं, एयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। एयर ड्रम के बाद क्या होता है, वो एयर ड्रम अटैच होता है नेक्स्ट पार्ट के साथ, वो है मिडल पार्ट ऑफ द एयर। एयर का मिडल पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। एयर का जो मिडल पार्ट है उसमें क्या चीज है, सबसे पहले हमारे पास बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ये मैकेनिकल वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, उसको कन्वर्ट आगे जो है मजीद ट्रैवल करवाती हैं, ये भी मूव करती हैं। अभी वाइब्रेशन है, इसकी वाइब्रेशन कहाँ जाती है, फर्स्ट में, फर्स्ट की सेकंड में, सेकंड की थर्ड में। इस तरह 3 बोन्स यहाँ पे अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ। ये बोन्स आगे किसी लिक्विड को, इसके अंदर लिक्विड होता है, ये पार्ट जो है इसे कहते हैं कोक्लिया, ये इनर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है। इनर पार्ट में ये लिक्विड जो है वाइब्रेट करता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, ये जो कोक्लिया है वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है, इसमें नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये नर्व इंपल्सेस जो है ये आगे क्या हो जाती है हमारे दिमाग के पास।
तो यहाँ पे हमारे पास जो नर्व्स हैं वो कौन सी यूज हो रही हैं? ऑडिटरी। ऑडिटरी नर्व्स इस्तेमाल की जाती हैं जो हमारे आवाज के सिग्नल को, जो वेव्स हैं उसके सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करके, नर्व्स के अंदर कन्वर्ट करके आगे दिमाग तक पहुंचाती हैं। तो ये एक पूरा मुकम्मल प्रोसेस है जो आवाज है हमारे दिमाग तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इस 118 पेज को रीड आउट करना है अच्छी तरह। शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन साउंड बी हार्मफुल एंड हेल्पफुल? किस तरह हार्मफुल साउंड जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है या वो फायदेमंद हो सकता है। तो इसको रीड आउट करते हैं। आपने जो है नोट से अच्छी तरह याद करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। आप जानते हैं जब आपको कोई ऊंची आवाज से जगाए या ऊंची आवाज से कान में कोई चीख चिल्लाए तो आपको जो है वो आवाज हार्मफुल लगती है, क्योंकि वो हमारी लिमिट से ज्यादा होती है। महसूस करने की जो लिमिट है आवाज की वो ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको चिड़चिड़ापन जो है जाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब इससे मुराद ये है कि जो बहुत ज्यादा नॉइज है, शोर है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसी तरह और भी अगर बेहंगम आवाजें जैसे ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज की आवाजें हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। या मुसलसल इंसान जो है शोर के अंदर होता है, उससे होता क्या है, जो कान के पर्दे हैं वो उसकी वाइब्रेशन में प्रॉब्लम आता है और जो है वो हो सकता है कि इंसान जो है वो बाद में सुनना भी छोड़ दे। तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस किया है। एनेक्सिटी है, परेशानी पैदा होती है, हेडेक है, सर का दर्द हो जाता है, उसके बाद डीफनेस है, डीफनेस मेरा बहरापन, ठीक है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसका वो हेल्पफुल पूछ रहा है, किस तरह साउंड हेल्पफुल हो सकती है। आप खुद जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि हम आवाजों को सुनते हैं। ये चीज अगर आप जानना चाहते हैं कि हेल्पफुल कैसे है, क्योंकि हम तो हमारे पास अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं हेल्पफुल कैसे है तो एक बहरे इंसान से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि वो किस तरह लोगों को अंडरस्टैंड करता है, किस तरह वो लोगों को सुनता है, किस तरह वो आवाजों को सुनता है। वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है, लेकिन वो उसकी अहमियत उसके पास होती है जिसके पास वो चीज मौजूद ना हो। तो हेल्पफुल किस तरह है, जाहिर बात है हमारे पास अल्लाह ताला ने काम दिए हैं, हम वो लोगों की आवाजें सुनते हैं, अपने घर वालों की आवाज सुनते हैं, दूसरे बाप की आवाज सुनते हैं। इसके अलावा भी माशरे के अंदर जो भी एनवायरनमेंट के अंदर साउंड क्रिएट्स होती है हम उसको सुनते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होता है, उसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, दूसरों से कनेक्शन हासिल करते हैं, फिर उसके बाद उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं, जवाब भी देते हैं, ठीक है। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, ये तीन वर्ड इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। नॉलेज आपका इल्म है, तालीम है, वो जो नॉलेज हम गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है, वो मालूमात है जो हम चाहे रेडियो की शक्ल में लें, चाहे मोबाइल की शक्ल में लें, चाहे किसी और तरीके से लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस है, जाहिर बात अगर आप किसी से सब पूछते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात वो क्या करेगा, आपको बोल के बताएगा, जो आपके कानों तक आवाज पहुंचेगी तब आप उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन में उसने मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट नहीं दिया हुआ, आप पढ़ेंगे, नोट्स ओपन करें जरा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, बाकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 7 क्वेश्चन लास्ट है हमारा, उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात कही, इसको जरा रीड आउट करें क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक दरख्त पे चिड़िया बैठी है, वो चहचहा रही है, ठीक है, अपनी धुन में आवाजें लगा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक पानी के अंदर एक व्हेल मछली जो है वो आवाजें लगा रही है, सिंगिंग कर रही है, जो भी आवाजें क्रिएट करती है वो, ठीक है। दोनों की स्पीड में क्या फर्क होगा, क्वेश्चन ये है। तो जाहिर बात आप जानते हैं कि जो पानी है वो ज्यादा क्या होता है, डेंसर होता है इसे हवा से, क्योंकि चिड़िया हवा में, ठीक है। तो हवा की जो स्पीड है, हवा के अंदर साउंड की स्पीड कम होती है पानी से, तो जो पानी वाली व्हेल की जो मछली है वो उसकी आवाज की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। इसका बस ये आंसर है। आज की डायरी मुकम्मल हो गई है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करेंगे, हमारे शॉर्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम लॉन्ग की तरफ चलेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सरफराज असलम, जमात शशुम। उर्दू का आज हमारा ये टॉपिक है, उन्वान था हमारे पास खेल।
उसी के हमने लास्ट टाइम किए थे शॉर्ट क्वेश्चन। आज है उसकी मौरूजी में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक, और उसके साथ एक अमली काम सवाल नंबर 10 ये मैंने ऐड किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम उसको रीड करेंगे। यहाँ पे दिए गए अल्फाज, मायनी और जुमले। सबसे पहले आपने अल्फाज को देखना है फिर उसका मीनिंग बताना है, और उसके बाद ये आपने जो जुमले बनाने हैं वो ये अल्फाज के बनाने हैं, इसके नहीं बनाने मायनी के। जो अल्फाज है इसके आपने जुमले बनाने हैं। तो पहला जुमला है हमारे पास रसीले, तो इसका जो मतलब बनता है वो है रस भरे। इसका जुमला बनेगा आम बहुत रसीले हैं। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है लाजवाब, इसका जो मीनिंग बनेगा वो है गैर कानूनी, इल्म की दौलत लाजवाब है। फिर है मुकद्दस, इसका मतलब है पाक, कुरान पाक मुकद्दस किताब है। उसके बाद ये मकबूल, मतलब है इसका पसंदीदा, क्रिकेट बहुत मकबूल खेल है। फिर है लफ्ज़ मुज़य्यन, इसका मतलब होता है आरास्ता, हमारा घर फूलों से मुज़य्यन है। तो ये आपका सवाल नंबर जो 2 है। तो आपके जो ये अल्फाज दिए गए हैं इस साइड पे आपको नजर आ रहे होंगे, तो आपने इनके जुमले बनाने हैं। इनके जुमले बनाने हैं, इससे पहले जुमले बनाने से पहले आपको इसके मीनिंग आने चाहिए। या अगर आपने मीनिंग लिख लेने हैं उसके बाद जुमला जो बनाना है आपको वो अल्फाज का ही बनाना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है इराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करने, इराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा मौरूजी में। इसमें क्या होता है कि बच्चे आमतौर पर बहुत सारी गलतियां करते हैं, ज़बर शर्त पेश की, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लफ्ज़ की पहचान नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लफ्ज़ की पहचान होनी चाहिए। अब जैसे ये पहला लफ्ज़ है हैसियत, ठीक है, एक के ऊपर ज़बर है, फिर स्वाद के ऊपर जज़्म है, फिर ये के नीचे फिर ज़ेर है, फिर ये के ऊपर जो है शद और ज़बर इकट्ठे, फिर ते के ऊपर जज़्म है। तो इट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है आप तब बेहतर कर सकें जब आपको पढ़ना ठीक आएगा। आगे है मुंसलिक, फिर सकाफत, फिर है सब्र। ये लफ्ज़ सब्र नहीं होता, ये है सब्र, स्वाद के ऊपर ज़बर है, बेकुल जज़्म है, सब्र। फिर है तहम्मुल, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन था सवाल नंबर 3, इराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। सबसे पहले तो आपको लफ्ज़ पढ़ना सही है। जैसे आपको ये लफ्ज़ सही पढ़ना आ रही है तो उसकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है कि अमली काम है, सवाल नंबर 10। अब यहाँ पे है आपका कौन सा पसंदीदा खेल है और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। या आपके नोट्स में मैनेज नहीं किया हुआ, ये बच्चे आप खुद करेंगे। लेट्स सपोज कि आपको क्रिकेट पसंद है, वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, हॉकी पसंद है, उसकी वजह क्या है। जो आपको यानी खेल पसंद है उसके साथ आपने 5 या 6 लाइन की पसंदीदा वजह बताने के आपको वो क्यों पसंद है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमने यहाँ पे राइट नहीं किया, वो यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे। आपका सफ़ा नंबर है 11 नोट्स का, सफ़ा नंबर 11 नोट्स के ऊपर ये आपका दिएंगे MCQs हैं, यानी कि दुरुस्त फिक्रात की जो है वो निशानदेही करने हैं। इसका नंबर 1 है पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है। इसके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। इसके बाद है पाकिस्तान। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, गिल्ली डंडा किन का मरगूब खेल है। लफ्ज़ गिल्ली डंडा नहीं होता, ये लफ्ज़ है गिल्ली डंडा, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन है शहरी लड़कों का, शहरी लड़कियों का या देहाती लड़कों का। तो इट्स मीन के इसका जो आंसर आता है यहाँ पे देहाती लड़कों का। अब तीसरा है कि खेल किसका इजहार करते हैं, आदत का, सकाफत का या फारिग वक्त का। जिसका ठीक आंसर है सकाफत का। खेल आंख मचोली मकबूल है शहरी लड़कों और शहरी लड़कियों में, देहाती लड़कों और देहाती लड़कियों में। जिसका करेक्ट आंसर है देहाती लड़कों और देहाती लड़कियों में। किस वक्त आंख मचोली का खेल खेला जाता है, यानी उसकी टाइमिंग क्या है, शाम के वक्त, दिन के वक्त या किसी भी वक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किसी भी वक्त। तो बेटा ये आज आपकी डायरी थी, मुख्तसर सी डायरी, जिसमें टोटल जो है मौलूजी के हमने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है अमली काम, मैंने आपको बता दिया है। आपने
जो भी खेल आपको पसंद है वो आपने लिखने हैं। उसके साथ एक क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपके एमसीक्यूज थे, तो इसके अच्छे से आप इसको तैयारी करेंगे। रिटन प्रैक्टिस में आपको हर बार ही कहता हूँ कि आपने रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है, उसका फ़ायदा आपको बहुत होगा, उसमें आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी और इमला की भी दुरुस्ती होगी। वस्सलाम। चलिए Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope all of you are fine at your home. Me, your history teacher and geography teacher for grade 6. Today our unit number is 9, Geography इंसानी बस्तियाँ, and our question is दिल्ली बस्तियों के इकसाम और खुसूसियात तहरीर करें। जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं, बस्ती से क्या मुराद है? बस्ती वो जगह जिसपे बहुत से लोग मिलकर बहुत सारे घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, वो जगह बस्ती कहलाती है। और दुनिया में सबसे पहले देही बस्तियां ही हमारे से वजूद में आई, यानी शहरी बस्तियों का वजूद देही बस्तियों के बाद में आता है। हमारे पास आज का क्वेश्चन है कि देही बस्तियों की अक़साम और खुसूसियात तहरीर करें। हमारे पास पहले इसके अक़साम, बस्तियों की अक़साम कौन कौन सी है? बिखरी हुई बस्तियां, जुड़ी हुई बस्तियां, लंबूतरी बस्तियां और मनसूबा बंदी के तहत बनाई हुई बस्तियां। सबसे पहले क्या है? बिखरी हुई बस्तियां, स्कैटर, एक दूसरे से दूर दूर फासले पर। वो घर, वो बस्तियां जो एक घर, उस बस्ती में एक घर दूसरे घर से बहुत फासले पे बनाया जाता है और दरमियान में ज़ेरे ताश जमीन होती है। उसी लोग हम कह सकते हैं कि उस इलाके में रहने वाले लोग अपनी ही जमीनों पर घर बनाकर रहते हैं। वहाँ एक घर दूसरे घर से बहुत फासले पर होता है, इसलिए इन बस्तियों को बिखरी हुई बस्तियां कहते हैं। एक घर यहाँ, एक घर काफी फासले पर, फिर उससे आगे उस फासले पर गाँव को एक ही बस्ती होगी, लेकिन उसमें यह होगा कि एक घर दूसरे घर से बहुत दूर होगा, पास पास ये घर नहीं होते, इसलिए इन्हें बिखरी हुई बस्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जुड़ी हुई बस्तियां, यानी इन बस्तियों में घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक घर की खत्म होती है, अगला घर उसके साथ फिर अगला घर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घर होते हैं। यहाँ के लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं और फसलों में काम करते हैं। इनका काम भी ज़राअत से ही रेलेवेंट होता है। ये बस्तियां आपस में जुड़ी हुई होने की वजह से जुड़ी हुई बस्तियां कहलाती हैं और ये बिखरी हुई बस्तियों की तादाद से ज़्यादा होती हैं, बड़ी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लंबूतरी बस्तियां, लंबाई की शक्ल में, जो दरियाओं के, नहरों के या किसी भी नहरों के किनारों पर जो बनाई जाती हैं बस्तियां, वो हमारे पास लंबूतरी बस्तियां कहलाती हैं। यानी इनकी क्या होता है सीक्वेंस, ये गुलाई में नहीं होती, लंबी की लंबी होती हैं, जो दरिया के किनारों पे, सड़कों के किनारों पे या नहरों के किनारों पर बनाई जाती हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग भी ज़राअत से मुंसलिक होते हैं। इसके अलावा ये शहरों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं और कई किस्म के शोबों से मुंसलिक होते हैं। और सबसे लास्ट हमारे पास है मनसूबा बंदी के तहत बनाई जाने वाली बस्तियां। फुल प्लान, मुकम्मल प्लान करके, मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत किस तरह एक बस्ती बनानी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे घर बनाना चाहिए, कैसा इंतजाम वहाँ पर होना चाहिए, हर पहलू पे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को जज करके, हर चीज़ के पहलू पर सोच विचार करने के बाद ये बस्तियां बनाई जाती हैं। इन बस्तियों में सड़कों का निज़ाम बहुत अच्छा बनाया जाता है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा रखा जाता है, बिजली के मीटर्स और सुई गैस के पाइपलाइंस वगैरह बेहतरीन बनाए जाते हैं। हर लिहाज से इन बस्तियों को बनाते हुए मुकम्मल प्लानिंग की जाती है, इसलिए इन बस्तियों को मनसूबाबंदी के तहत बनाई जाने वाली बस्तियां कहा जाता है। और इन बस्तियों में रहने वाले लोग थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। हाई लेवल से मुराद खुद भी अच्छे रोजगार से मुंसलिक होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी खुराक मुहैया कर रहे होते हैं, खुद भी अच्छे रोजगार से मुंसलिक होने की वजह से बच्चों को तमाम सहूलियात दे रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्री प्लान बस्तियां होने के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोग भी प्री प्लान ही होते हैं। तो ये हमारी आज की बस्तियों के एग्जाम है। खुसूसियात हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टुडे ओनली हाफ क्वेश्चन यू हैव टू लर्न एट योर होम। फी अमानिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I am your Islamic teacher of grade 6 यूनिट हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज की डायरी में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूनिट की रीडिंग करेंगे और मारूज़ी मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी
والد का नाम अबू तालिब और वालिदा का नाम फातिमा बिन्ते असद था। आपकी कुनियत अबू हसन और अबू तुराब है और लक़ब हैदर करार, असदुल्ला और मुर्तज़ा है। कुनियत कहते हैं किसी औलाद या माँ बाप की तरफ से निस्बत हो, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम यानी कासिम का बाप और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू हसन यानी हसन का बाप है। और लक़ब कहते हैं किसी कारनामे की बुनियाद पर दिया गया टाइटल। इनको हैदर करार और असदुल्ला, हैदर करार इनकी वालिदा कहती थी और असदुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दिया था। असद और हैदर दोनों का मतलब शेर है, बहादुर, शुजाअत से लड़ने वाला। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, यानी चचा साद भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवरिश का जिम्मा लिया। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाई। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने की सादत नसीब हुई, यानी सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उस वक्त इनकी उम्र मुबारक 10 वर्ष थी, यानी 10 साल के थे। हिजरत मदीना के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया, जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। दामाद कहते हैं बेटी के शौहर को। अब हम देखेंगे इनकी शुजाअत और बहादुरी के कारनामे। शुजाअत का मतलब है तेज लड़ने वाला, बहादुर का मतलब ना डर, बेखौफ और खतर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत मदीना के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया और नॉन मुस्लिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अहाता कर चुके थे। अहाता कहते हैं घेर लेने को, और वो आपके कत्ल के इरादे से आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई कि मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं और मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है, मैं मदीना जा रहा हूँ। लेकिन यही मुहासरा करने वाले कुफार, इनकी इमानतें मेरे पास हैं, ये इमानतें सुबह इनको लौटाकर मेरे पास मदीना आ जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेखौफ व खतर आपके बिस्तर पर लेट गए। सोचे, पता हो कि घर का मुहासरा हुआ है और यहाँ पर अभी कत्ल किया जा सकता हूँ। बेखौफ व खतर उनके बिस्तर पर लेटे वहाँ पर रात गुजारी। सुबह इमानतें कुफार के हवाले करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना चले गए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम ग़ज़वात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की है, सवाए ग़ज़वा तबूक के। हर ग़ज़वा में आपने शिरकत की और बेहतरीन बहादुरी के कारनामे आपके हैं। ग़ज़वा खैबर के मौका पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम का लफ्ज़ आपकी रीडिंग में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है झंडा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में पकड़ाया और उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई। हज़रत अली को लीडर बनाया। ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला एक यहूदी सरदार मरहब से हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे पहले ही वार में कत्ल कर दिया। मरहब के कत्ल होने से यहूदियों के हौसले पस्त हो गए और एक एक करके 8 के 8 किले फतह हो गए, यानी खैबर का किला फतह हुआ और बाकी किले फतह हो गए, जिस वजह से इन्हें फातिह खैबर कहा जाता है, यानी खैबर को फतह करने वाला। इसके अलावा ग़ज़वा उहद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिमों ने अहाता किया, आपको घेरा और आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए। ग़ज़वा उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक सामने के शहीद हुए थे और आपको ज़ख्म आए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के साथ आपकी हिफाजत में मशगूल हुए, तीर तलवार अपने ऊपर लेते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोशा रहे, आपको आगे से ढाल बनकर उन्होंने उस चोट से बचाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तरबियत का नतीजा था कि
जख्म सहे ना गए और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 21 रमजान मुबारक को शहादत पाई। ये है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकम्मल रीडिंग, आप इसे अपनी बुक से इत्तफाक करेंगे। अब हमने करनी है मारूसी में हमारे पास फर्स्ट में क्वेश्चन आया है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इसके मैं आपको 3 आंसर दे रही हूँ, आप अपनी बुक पर इसे कंप्लीट करेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? चचा साथ भाई, फूफा साथ भाई या मामू साथ? चचा साथ भाई थे, ठीक करें। इस्लाम कबूल करते वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? 15 साल, 12 साल, 10 साल? 10 साल पर टिक करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह किससे हुआ? हजरत रुकैया, हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर टिक करेंगे। खैबर की लड़ाई में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाबला किससे था? मरहब से, अबू जहल से, वलीद बिन उतबा से? मरहब से, इसे टिक करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? 21 रमजान मुबारक, 21 मुहर्रम हराम, 21 ज़ुल्हज, 21 रमजान मुबारक। अब देखें खाली जगह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा डैश के बेटे थे। नाम लगाएंगे चचा का इस डैश में, अबू तालिब। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान को इस्लाम की दावत दी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? 10 वर्ष। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सादा मिजाज होने के साथ साथ डैश में भी काबिल थे, इल्म और फजल। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब हैदर करार, असदुल्लाह और डैश था, मुर्तज़ा, पसंदीदा। ग़ज़वा खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश हजरत अली के सुपुर्द किया, अलम यानी झंडा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशहूर यहूदी सरदार डैश को पहले ही वार में कत्ल कर दिया। यहूदी सरदार का नाम लिखना है मरहब। फतह खैबर की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डैश का लक़ब दिया गया, फातिह खैबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात में बेशुमार डैश थी, खूबियाँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डैश तक मुसलमानों के खलीफा रहे, 4 साल 9 माह, ये इनकी खिलाफत की मुद्दत है। इसे कंप्लीट कर दें, बुक वर्क को भी कंप्लीट करें।